السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کون بناتا ہے؟ بے شک زندگی اللہ بناتا ہے۔ بہت ہی پیارا بیان۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اس بیان کو ضرور سنیے۔ جزاک اللہ۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور اللہ بنانے کا راستہ اعمال ہے، صحیح اعمال پر اللہ بناتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر بناتے ہیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر وعدے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کو کھول دے، میرے رزق کو تنگی دور ہو جائے۔ آسان تم علی طہارت یوسع فی رزق، ہمیشہ بوضو رہو تمہارا رزق کھول جائے گا۔ یہ کس کا بتایا ہوا نسخہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نہیں استعمال کرتا ہے کوئی۔ بوضو رہنا کوئی مشکل ہے؟ کتنا پاک صاف رہو گے۔ ادھر شاید بیٹا ہوگا، ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا امریکہ میں ہے، مجھے کسی نے بتایا، پھر میں اس کی دکان پر گیا ادھر چونگے میں کہ تاکہ ان سے سن لوں۔ امریکہ وہاں ایک سٹور میں ہے امریکہ میں۔ پھر میں نے ان کے زبان سے خود ان کانوں نے سنا کہ وہاں امریکہ میں یہ 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، بعض لوگ وہ کرنٹینا میں ڈالنے کے لیے وہ جاتے نہیں ہے تو ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو بعض وقت ٹیم ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پولیس والے راستے میں لوگوں کو گھیرا ڈالتے ہیں اور سر پر وہ رکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس نے بتایا مجھے کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ 90 آدمی تھے، سب میں شکایت نکلی کرونا کی، اور مجھ پر جب مشین لگایا کچھ بھی نہیں، دوبارہ لگایا، پھر مجھے کہا تم نے کون سی دوائی استعمال کی؟ میں نے کہا میں 5 وقت وضو کرتا ہوں اور آیت الکرسی پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ تو پولیس والوں نے کہا ان سے کہ تم بھی ان جیسا کرو نا۔ ہمارے ساتھ خدا کی قسم ایسے نسخے جو امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مسلمان اس پر یقین نہیں ہے۔ ایک وضو سے تمہارا، ایک استغفار سے خدا کی قسم تمہارے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یقین کرو، تم 300 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھ لیا کرو۔ نبی کا بتایا ہوا نسخہ ہے، پکا حدیث ہے، سارے پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ ادھر میں مرکز وضو کی جگہ پر جا رہا تھا، باہر بیان تھا، ایک آدمی آپ جیسے عمر کا تھا، 40-45 سال۔ مجھے کہا تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ ایک تو وضو میں پانی کم استعمال پر بہت زور دیتا ہے، میں ہر وقت بیان میں یہ یاد رکھو میرے پیارے بھائی۔ میں نے پہلے کہا کہ جو بات سنو عمل کی کوشش کرو، سنا اور عمل نہیں کرتا یہ تو یہودیوں کا راستہ ہے۔ علم آ گیا لیکن پھر بھی پرواہی جتتا ہے۔ آج تو نیت کرو۔ وہ کہتا ہے میں وضو پر 2 لوٹے استعمال کرتا، ابھی مشق شروع کی، آدھے لوٹے پر وضو بناتا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت پائی۔ کس کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ پانی کم استعمال کریں؟ مشق شروع کرو۔ تم دیکھو اپنے نماز میں، دوسرے نوجوان نے مجھے کہا کہ مجھے وہ وسوسے زیادہ آتے تھے، جب پانی کا استعمال کیے گے میرے سارے وسوسے ختم ہو گئے۔ یہ نسخے ہے۔ دوسری چیز بتائی کہ جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کیا، میرا کوئی کام اٹکتا نہیں، کوئی کام۔ یہ تجربات تو دوسری بات ہے، اصل بات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس نے بتایا ہے کہ اللہ ہر تنگی سے نکالے گا۔ تم پابندی سے کرو تو صحیح، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرو، بیٹھ کر کرو، 20 منٹ لگتے ہیں۔ بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کرو، اعمال کرو، نماز صحیح پڑھو، نماز پر بنی ہوئی ہے نماز، یہ بار بار یہ بات سنو، بنی ہوئی ہے نماز انسان کی وہ اصلاح کر سکتی ہے جو 1000 پیرا اور مرشد نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی میں نے کہا یہ مشق شروع کرو میرے پیارے بھائیو، آج سے جب سورہ فاتحہ پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک مولوی صاحب نے ابھی 1-2 مہینے پہلے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تبلیغ کیسے کروں؟ کسی نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے طور پر کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نعبد کا معنی مفتی محمد شفیع صاحب نے کیا ہے، یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے، یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتے ہیں کسی سے نہیں کریں گے، یا اللہ جیسے تیرا مانتے ہیں ایسا کسی سے نہیں مانیں گے۔ یہ 3 باتیں ایاک نعبد میں آ گئی۔ یہ تم نے دعویٰ کیا، یا اللہ یہ بات آسان نہیں ہے، مشکل، وایاک نستعین، فوراً یا اللہ اسی بات میں تو میری مدد کر۔ میں نے دعویٰ کیا تو مجھے ایسا بنا دے۔ کس کس کی نیت ہے کہ کوشش کریں گے کہ اس کو پڑھتے وقت اسی سوچ سے۔ ابھی پیر صاحب
फरमाते थे असर से पहले मशवरे में कि ये नमाज में ये तवज्जो बराबर करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूं, नहीं तो कम से कम अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह से मांग रहा हूं। सवालात दुआ को कहते हैं, नमाज तो सारा अल्लाह से मांगना है। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पढ़ते हुए इस तसव्वुर से पढ़ो, या अल्लाह मैं तो 1 साल का बच्चा है, खुद नहीं जा सकता है, किसी ने उसके दोनों उंगलियां पकड़े, उसको जिसके हाथ में उंगलियां उसको यकीन है मैंने छोड़ दिया तो गिर जाएगा। या अल्लाह अगर तुमने हमारे उंगलियां छोड़ दी, हम एक कदम भी खुदा की कसम सही नहीं उठा सकते। सूरह फातिहा इस दौर देखो कि तुम्हारी जिंदगी बदलता है या नहीं बदलता। रुकू सजदे में खासकर, ये मैंने पहले भी कहा, ये हमारे जवान बच्चे, मुझे अपने मस्जिद में इमाम हूँ, बस जवान ऐसे नमाज पढ़ते हैं कि नमाज उनको बद्दुआ देती है। रुकू गया अभी सर उठाए नहीं, सुजदी गया सुजदे सर उठाए नहीं, फिर थोड़ा सा नमाज पर वक़्त लगाओ, थोड़ा सा रुकू में जाओ, सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है रब मेरा जो बहुत बड़ा है। दिल में कहो या अल्लाह, रब मना सारी ज़रूरतों को पूरा करना, या अल्लाह तू तो बहुत बड़ा है, मेरी तो छोटी ज़रूरत है, या अल्लाह मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर। ज़ुबान पर ये पढ़ो, दिल में मांगो, सुजदे में सर लगाओ। सबसे ज़्यादा इंसान अल्लाह को जो करीब होता है वो सुजदे के हालत में। नफलों में सुन्नतों में 7 मरतबा पढ़ो, 9 मरतबा 13 मरतबा पढ़ो, सुजदा लंबा करो, और फिर सुबहान रब्बियल आला। ऐसा किताबों में लिखा है कंजुल अमाल में, सुजदे में ये तसव्वुर से सुजदा करो जैसे अल्लाह के कदमों के दरमियान मैंने अपना सर रखा है। कितनी आजिज़ी है किसी के सर के कदमों में अपना सर डालना। या अल्लाह मैंने ये सर डाला है, तू तो बहुत बुलंद है, मेरे तो थोड़ी ज़रूरत है, या अल्लाह मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करो और मेरी तरबियत फरमा। ये देखो तुम ऐसा नमाज शुरू करो कि तुम्हारे जिंदगी कैसे चेंज बन जाती है। किस किस की नीयत है, इंशाल्लाह इसकी मशक करेंगे। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब ने यह किस्सा लिखा है। हज के लिए जा रहे थे, रास्ते में कहा कि मुझे वापस कर दो। क्या बात हो गई? मुझसे 700 कबीरा गुनाह हो गए। कितने? लोग हैरान हो गए कि 700 बड़े गुनाह तो एक फासिक फाजिर। पता चला कि उसकी जमात की नमाज रह गई है। तो वहां शेखुल हदीस साहब ने फजाइल हज में लिखा है कि एक रिवायत है, हदीस है कि जमात से रहना इतना गुनाह है जैसे 700 गुनाह कबीरा गुनाह आदमी ने किया। कोई गुनाह समझता है? सुबह को अकेला अकेला टक्कर मारता है। हालांकि फजर की नमाज, ये जवानों से दरखास्त है, जो भी फजर की नमाज जमात से पढ़ेगा, खुदा की कसम मुस्लिम शरीफ सारा दिन अल्लाह की हिफाजत में होगा। किसकी नीयत है? मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करो। हाँ, नमाज पर कोशिश करो, तन्हाई में जिक्र करो, 15-20 मिनट अल्लाह के साथ नशिस्त लिया करो, अपनी ज़रूरतें बताओ, बीवी के साथ बातों में मज़ा, दोस्तों के साथ, कभी अल्लाह के साथ भी मज़ा आया। वो करीम ज़ात जो सारी ज़रूरतों को वही पूरा करता है, सबको जो उसका दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, उसका लिहाज नहीं रखते। बाप का लिहाज रखते, भाई का, लेकिन वो बड़े का लिहाज। मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा। नूह अलैहिस्सलाम कौम से कहते हैं बदबख्तो, इतने बड़े अल्लाह का लिहाज नहीं रखते। वो किन चीज़ों से खुश होता है? अब्दुल वहाब साहब ने हमारे हल्के का जोड़ था, हर इंसान की कामयाबी इसमें है कि अल्लाह को राजी करने में लग जाए, मर्द हो औरत हो। अभी अल्लाह नाराज है हम लोगों से। नबी ने निशानियां बताई है, हदीस है कि जब अल्लाह पाक इस उम्मत से नाराज हो जाएगी तो पिछले उम्मत जैसे जमीन में नहीं दंसाते। इनके चेहरे वो बदलते नहीं है, पहले उम्मतों की शक्लें बदल दी, खिंजीर बनाया है, कुरान में है, वजअल मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, बंदर बनाए हैं, खिंजीर। लेकिन अल्लाह नाराजगी की 3 निशानियां बताई, तवज्जो से सुनो। वलाकिन क़ल्लत अमतारुहा, बारिशें कम हो जाएगी। बारिशें कम है या ज्यादा है? कितने सालों से बारिशें, फसल सही नहीं होती, ये अल्लाह के नाराजगी के निशान है। वग़ल्लत अस्ग़ारुहा, और दिन ब दिन चीजों की कीमतें बढ़ती जाएगी। वयुवल्ली अलैहा अशरारहा, बरसरे इक़्तिदार लोग, बदतरीन लोग अल्लाह लेके आएंगे जब अल्लाह नीचे लोगों से नाराज हो जाएंगे। अभी नीचे लोग हुकूमत से शिकायत करते हैं, खुद अल्लाह को राजी करने में नहीं लगता है कि अल्लाह हमारे हालात को ठीक करे। हर आदमी दूसरे को देखता है कि उसकी गलती है। मेरे प्यारे भाइयों, आज तो एक फैसला कर लो,
मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी ने फरमाया है, जो आदमी तौबा करता है वो गुनाहों से खुदा की कसम ऐसा पाक होता है जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है उस दिन उस पर कोई गुनाह होती है। लेकिन तौबे में 4 शर्तें जरूरी है। कितने? 4 चीजें जरूरी है। कितने? अगर करना है तो बताऊंगा, नहीं करना है तो फिर क्यों बताऊं? किस किस की नियत है? हाँ, तो ऐसा तौबा करेंगे। ये जितना भी इंसान को मालूम है कि मुझसे गलती होगी उस पर नदामत हो, या अल्लाह ये मैंने अच्छा नहीं किया, ये मैंने जितनी भी इंसान को माली ये बात गुनाह की मुझसे हो गई, ये गलत मैंने देखा है, गलत सुना है, गलत बोला है, वो किया है, वो किया है, उस पर दिल में नदामत हो कि ये मैंने पिछले जो किया है उस पर नादिम हो। समझ में आ रही है? इस वक्त फिलहाल में गुनाह को छोड़ दे, जितने मालूम है कि ये अल्लाह के नाफरमानी है उसको नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा। आइंदा न करने की नियत हो। आइंदा 3 शर्तें ये है, और चौथी शर्त ये है, अगर किसी का हक आया है उसको अदा करो या माफ करा दो। अगर नमाज़ी छूटी है तो उसकी कज़ा लाओ। ये 4 शर्तें हैं। एक, पिछले पर नदामत, मौजूदा वक़्त में गुनाह छोड़ो, आइंदा न करने की आज़म, और जो हुकूक रह गए उसको अदा करो किसी के इंसान का। अजीब बात बताऊं, अल्लाह हमें गीबत से बचाए। तफसीर रूहुल मानी बड़ा मोतबर तफसीर में, उसमें लेके अगर किसी आदमी की गीबत की है तो उसका भी दवाई नबी ने बताया। हमारा नबी ऐसा शफीक है, कभी ख्याल आया कि मुझसे तो किसी की गीबत हो गई, और गीबत जना से भी सख्त गुनाह है, लोग गुनाह भी नहीं समझ, तो कफारा तो मन इख्तबता हुआ अन तस्तगफिर लहू, जिसकी गीबत की समझा कि मैंने अच्छा, या अल्लाह जिस आदमी की मैंने तो उसको माफ कर दे, जिसकी गीबत की उसको माफी, अल्लाह से माफी मांगे तो तुम्हारा गुनाह माफ हो गया। करोगे ना? हाँ, और हाँ, अल्लाह के हुकूक रह गए उसको अदा करने में लगो। ये अमाल वाली जिंदगी से दुनिया जन्नत बनती है, खुदा की कसम ये गारंटी है। आज जो हम परेशान है, ये कभी भी न सोचे कि ये मेरे साथ बड़ा तन्हा नहीं है, मेरा बड़ा घर नहीं है, मेरा कोठी नहीं है, मेरा ये नहीं है। सबसे दीन की कमी है, किसी में कितनी फीसदी की, लेकिन कोई भी, मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाता है, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग मुझे बुजुर्ग कहेंगे, खुदा की कसम ये बात हक कहता हूँ कि अभी मौलाना यूसुफ रहम किसी में आदमी भी पूरा दिन नहीं है इस जमाने में, और कमी महसूस भी नहीं करते। अगर महसूस करते तो दुनिया की कमी, दीन की कमी एहसास भी नहीं है। कराची में वासे मंजूर साहब, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बगीचा बना दे, बड़े आदमी थे। हम सोमालिया में जा रहे थे 97 में, हमारे साथ मुज़ाकरा कर रहा था कि कराची में एक आदमी थे, तबलीग में भी बहुत पैर रहे थे, लेकिन उसके हालात परेशान कौन थे, बनते नहीं थे। तो मैंने सोचा कि उसका तार कहाँ कटा हुआ है, उसका तार समझ में आई, उसका तार। तो पता चला कि उसकी वालदा उससे नाराज है। उसकी वालदा तबलीग पर नहीं, वैसे वालदा को नाराज किया। तबलीग के बारे में भी ये सुनो, बाज़ लोग गलतफहमी में है। साफ कराची के आपके मसाइल का हल यूसुफ लुधियानी साहब के 10 जिल्दों में किताब है। एक आदमी तबलीग में जाता है, माँ बाप की मर्जी नहीं है तो उसको तबलीग में जाना जायज़ है या नहीं है, इसकी 2 सूरतें हैं। वो किताब खुद आप देख सकते हैं। अगर माँ बाप बिस्तरे पर बीमार पड़े हैं, कोई और बेटा नहीं है, तो फिर तो हक है कि माँ बाप की खिदमत करे। लेकिन अगर ये माँ बाप इस बेटे को दुनिया के लिए 4 साल के लिए भी फारे करते लेकिन तबलीग की इजाजत नहीं देते, ऐसे माँ बाप का मानना गुनाह है। ऐसे माँ बाप का ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जब ऊपर वाला नाराज होता है यहाँ पीछे नीचे की इजाजत नहीं है। लेकिन तो हमारा भी मेरे प्यारे भाइयों कहाँ तार कटा हुआ है। अभी जोड़ में ये भी बताया कि उलमा से मसाइल सीखो। हलाल हराम का 80% भी दीनी हराम ग़िज़ा के वजह से आती है। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, जिस तरह हमने मौलाना अज़ीम साहब की ये प्यारी कारगुजारी सुनी, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल किए हैं जो मैंने सुने, और आप लोगों को भी चाहिए कि इस बयान को सुने और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।